Last class में we have discussed the design procedure of cotter joints of type spigot and socket. Okay. Now in this lecture we'll do a problem on spigot and socket type of joint. इस joint को हम design करेंगे. So the problem is कि two rod ends of a pump are joined by means of a cotter joint making spigot and socket at ends. Design this joint for an axial load of 80 kilonewton, which is alternately tensile and compressive. Now, to solve this problem, we need sigma t, tau, and sigma c of material, that is permissible stresses of material. So for this problem, assume sigma t, that is tensile stress, (50 megapascal), tau shear stress 35 megapascal, and sigma c, the crushing stress or the compressive stress 90 megapascal. ठीक है. Now this is the joint we have to design. So first of all, we need to calculate the diameter of the rods. जो पंप और मोटर की जो रॉड है, जो ज्वाइन किया है हमने स्पीगोट और सॉकेट एंड से, तो उसकी उन रॉड्स का डायामीटर हमें फाइंड आउट करना है. सो द रिलेशन दैट इज जो फेल्यूर मोड होगा कॉटर जॉइंट का, उसका एनालिसिस करेंगे, उनकी रिलेशंस होंगी और वहां से हम विल डिटरमाइन द पैरामीटर्स, ठीक है, ऑफ कॉटर जॉइंट. सो टेंसाइल failure of rod at diameter d. If the rod is fail in tension, yes. So the relation is pi by 4 d square into sigma t is equal to p if p is the applied load, जो टेंशन है. तो यहां से हम रॉड का डायामीटर जो है वो d वो फाइंड आउट करेंगे. सो दैट डायामीटर इज, कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा. दैट इज पाई बाय 4 d स्क्वायर, सिग्मा t इज 50 मेगापास्कल. तो 50 मेगापास्कल मींस कितना हो गया, कितना न्यूटन पर mm स्क्वायर हुआ. सिग्मा टी 50 मेगापास्कल है ना, तो ये होगा 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर. टाउ 35 मेगापास्कल है, तो जब न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर. सिग्मा सी 90 मेगापास्कल है, तो ये हो जाएगा 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर. So it is multiplied by 50, that is equal to applied load is 80 kilonewton, so 80,000 Newton. D square is equal to 80,000 multiplied by 4, इसको इधर ले गए, divided by pi or 50. So this comes out, this is equal to 80,000
into 4 divided by pi divided by 50. 2037.18. Now D will be सर ये पी की वैल्यू हाँ सर इसमें क्वेश्चन में अवेलेबल है ना, 80 किलो न्यूटन का लोड है ना, 80,000. ओके 80 किलो न्यूटन है ना, दिया ना, ठीक है। सो डी कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, सर हम्म, सर कुछ लोग ज्वाइन करना चाहते हैं बट उनका ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। एक 2 मिनट रुको, मैं करवा रहा हूँ। ठीक है सर। So D comes out 45.13 mm। जब हमने इसका रूट लिया तो D इतना है। So this D 45.13 न्यूटन, sorry 45.13 mm। ठीक है, तो ये जो डायमेंशन आया D 45.13, this means the diameter can be greater than 45.13 but cannot be less than 45.13, क्योंकि this is the limiting condition ना, ये तो मिनिमम, दिस इज द मिनिमम डायमेंशन, इतना तो चाहिए, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा इज ओके। सो इट इज 45.13, सो लेट इट बी से 46 mm, we will adopt 46 mm, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फेलियर मोड इज tension failure of rod across the slot, but here it is pi by 4 d2 square minus d2 into t into sigma t is equal to p, ये relation है। In this relation there are two unknowns, so we cannot use this relation now. What is other relation then? Can we use this relation? Tension failure of socket across slot. The relation is this: pi by 4 d1 square minus d2 square minus d1 minus d2 into t. No, we cannot use this relation also. इस relation में भी हम use नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे d1 भी है, d2 भी है, and we also have t. So in this equation there are three unknowns, so we cannot use this relation. So let's search for another failure mode, that is shear failure of Cotter. So the relation is twice bt into tau is equal to p. Again, b and t are two parameters, so we cannot use this relation. Then shear failure of spigot rod end, here also twice a d2 tau. So a and d2 both are unknown, so we cannot use this failure mode also. Then we have shear failure of socket end. So d4 minus d2, again d4 minus d2 to c into tau. So here also there are three unknowns, d4, d2 and c. So abhi use nahi kar sakte. Then crushing failure of rod or Cotter. So crushing failure of rod or Cotter, crushing failure of rod or Cotter, here in this relation we have d2 into t into sigma c is equal to p. Now here in this relation, tension failure of rod across the slot, we have d2 and t, and there is another relation which contains d2 and t, so we can use this relation now.
So we'll consider crushing failure of rod or cutter. The relation is d2 into t into sigma c is equal to p. So here d2 into t is there. So we can find out d2 into t is equal to p upon sigma c. इस इक्वेशन को हम इसमें पुट करेंगे. टेंशन failure of rod across slot. So tension failure of rod across slot, the relation is pi by 4 d2 square minus d2 into t. This area multiplied by sigma t is equal to p. Now d2 into t is p upon sigma c. So pi by 4 d2 square माइनस यहाँ पर आ जाएगा d2 इंटू टी की जगह हम रखेंगे p अपॉन सिग्मा c इंटू सिग्मा t इज इक्वल टू p. तो पाई बाय 4 d2 स्क्वायर माइनस p जो है वो 80,000 न्यूटन अपॉन में सिग्मा c 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर और सिग्मा t जो है वो sigma t is 50. So 50 that is equal to 80,000. So pi by 4 d2 square minus 80,000 upon 90 is equal to 80,000 by 50. So pi by 4 d2 square minus 80,000 by 90. So 80,000 divided by 90. So this is 888.88. That is equal to 80,000 divided by 50. So it will be 16,000. So pi by 4 d2 square is equal to 16,000. ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 888.88. So plus 888.88. So pi by 4
अरे दीपक सर, हेलो। बोलो भैया। अरे बोलो। ये बुक में कौन सी पेज पे है ये? बुक देखना पड़ेगी, मैंने बुक निकाली नहीं है। पता नहीं है, अपनी मालूम। आप देख रहे थे ना वो? अबे मैं तो यही नहीं देख रहा था अभी। क्या बात क्या कर पढ़ा रहे रहे हो? बाथरूम में था मैं, तो बाथरूम में चालू करके बाथरूम में था मैं। हो? अरे किताब देखा है वो, बड़ी वाली मशीन डिजाइन की। ये मैं शार्प की और कपलिंग करके है चैप्टर, उसमें आया है। मैं रुक जा, देखता हूँ, मैंने लिखा था दूसरे नंबर पे। अक्षय, हेलो हेलो। हेलो हेलो। पेज नंबर अक्षय। 88 पे शायद, पेज नंबर 88। 85? 88। 88? अच्छा ये वाली। मशीन एलिमेंट वाली बुक में। हाँ हाँ, मशीन एलिमेंट ही होगा। मुझे लगा ये शाफ्ट वाफ्ट है, तो वो शाफ्ट वाले चैप्टर में पहुंच गया मैं। नहीं, पेज नंबर 88 पे। हाँ क्या देखा। क्या बताया अभी तक सर ने, क्या बताया? अरे क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन बता रहे। अच्छा। हाँ, तो वो क्वेश्चन में। अरे अक्षय, बुक बुक कौन सी रेफर करनी है? हेलो। अरे बुक कौन सी रेफर करनी है? क्या वो छुट्टी तो ये पे करनी क्या? अरे रुक जा कौन सी? अरे वहां बोलना, फोन क्यों लगाया? वीबी भंडारी है भाई, वीबी भंडारी। सिस्टम पे खोल के बैठा है। ओके। तो क्या हुआ, तो आवाज तो आती है ना उसमें भी। वो देखना रे, सर नहीं ज्वाइन हो जाए एकदम से, फिर तुम मगजमारी करोगे या ग्रुप पे, नहीं तो। सर को बोलो यार, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, बोलना 6 बजे से चल रही क्लास। हेलो। यस सर। You're हाँ, अपन कहाँ पे थे? सर आप वो कैलकुलेट कर रहे थे हम डी। डी डायमीटर ऑफ रॉड तो हमने कैलकुलेट कर लिया था। सर एक्चुअली वो आप कैलकुलेशन कर रहे थे तभी कट ऑफ हो गया था। ओहो हो। तो ये जो D2 कैलकुलेट कर रहे थे हम, वहां तक नहीं पहुंचे थे क्या? नहीं नहीं सर, डी टू ले वो हम ये 80,000 डिवाइडेड बाय 90 और वो 50 वाला कैलकुलेशन कर रहे थे ना। हाँ, वही D2 है, डायमीटर ऑफ स्पीगॉट। D2 इज डायमीटर ऑफ स्पीगॉट है ना? जी सर। हम वही कैलकुलेट कर रहे थे, एकदम करते करते ही ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन है। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है लेकिन। एक मिनट बस, सिस्टम डाउन हो गया था। हाँ, ये ठीक है, यस सर, सर ना ये विजिबल। हमारी इक्वेशन है ना?
तो हम यहां से थे π/4 d2 स्क्वायर माइनस ये 80,000 by 90 इज इक्वल टू 80,000 by 50। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया और हम यहां तक पहुंच गए π/4 d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16,888.88। ठीक है, देन d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16,888.88 into 4 divided by pi। तो ये कितना आएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये ना this multiplied by 4 divided by pi, so it is coming out 21,503.59। d2 स्क्वायर इतना आ रहा है। तो d2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ 21,503.59 mm ये d2 होगा। सो d2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 146.64 आ रहा था। 146.64। यस सर। 1503.59, so it is coming out 140। so this is the diameter of spigot। जो हमारा पहले वाला डायमेंशन था ये था रॉड का डायामीटर, ठीक है, और ये है डायामीटर ऑफ स्पीगॉट। ठीक है ना, तो यहां से हमें फ्रॉम दिस रिलेशन, अब हम इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं क्रशिंग फेलियर ऑफ रॉड और कॉटर, जिसमें हमारी रिलेशन थी। सर आपका स्क्रीन हैंग हो गया सर। स्क्रीन हैंग हो गया? करो। नहीं, हमारे पास में हाँ सर अभी हैंग हो गया था, अभी आपने अभी ठीक है। अभी तो सर मतलब स्क्रीन पे कुछ नो सर, अभी ठीक है। नॉट विजिबल। स्क्रीन गायब हो गई ना? सर हाँ, सर स्क्रीन गायब हो गई, लॉस्ट योर नेटवर्क कनेक्शन इधर बता रहा है। अभी कनेक्ट हुआ कि नहीं? क्लियर सर, हो गया। अभी हुआ, दिख रहा है? यस हाँ सर। सर हो गया सर, हो गया। हाँ ठीक है, चलिए। तो ये हमने रिलेशन यूज किया था d2 इंटू टी इज इक्वल टू पी अपन सिग्मा सी, ये हमने यहाँ पे पुट किया था इस रिलेशन में। तो यहां से ये एलिमिनेट हुआ, तब हमें d2 मिला था। तो d2 मिल गया, तो हम t जो थिकनेस ऑफ कटर है वो हम निकाल सकते हैं, या थिकनेस ऑफ दिस स्लॉट जो कट है। ठीक है, तो हम ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में। d2 इंटू टी इज इक्वल टू p अपॉन सिग्मा सी। तो d2 t इज इक्वल टू p अपॉन d2 इंटू सिग्मा सी। ये 146.64 मींस दिस इज द मिनिमम वैल्यू, इससे कम नहीं चलेगी, इससे ज्यादा वैल्यू हम ले सकते हैं। तो p so let it be 148 mm, राउंडिंग कर लेते हैं। so p हमारा है 80,000 न्यूटन, किलो न्यूटन, सॉरी 80 किलो न्यूटन मीन्स 80,000 न्यूटन, और d2 148 और सिग्मा सी कितना है 90 का है mm, तो ये t mm में आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 80,000 divided by 148 divided by 90
6.00 mm। ये थिकनेस ऑफ कॉटर बोले या थिकनेस ऑफ स्लॉट जो कट हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डायमेंशन अब हम फाइंड आउट करते हैं। सो लेट अस कंसीडर कि टेंशन फेलियर ऑफ सॉकेट across slot। ये रिलेशन है पाई बाय 4 ब्रैकेट d1 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस d1 माइनस d2 इंटू टी। ये हो गया एरिया और ये मल्टीप्लाइड सिग्मा टी, ये रेजिस्टेंस पी। तो इस इक्वेशन में d2 डायमीटर ऑफ द स्पिगॉट नोन है, t जो स्लॉट है की थिकनेस वो भी नोन है। तो इस इक्वेशन से वी कैन फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ सॉकेट। ये जो सॉकेट का डायमीटर है, सॉकेट का आउटर डायमीटर, इंटरनल डायमीटर तो d2 होगा इसका। सो दिस इज द एरिया। जब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो साथ में क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ राइट साइड में बनाते चलते हैं। जैसे ये होता है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था, ये रॉड कनेक्ट क्रशिंग फेलियर ऑफ जो हमने लिया था रॉड और कॉटर, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ये था, इसमें ये डायामीटर d और यहाँ पर दिस इज d2 और ये t। और टेंशन फेलियर अक्रॉस द स्लॉट, तो यहाँ पर जो था इस वाले केस में sorry, this is the area, this diameter is d2 and this is t। और ये पहले वाले में जो यहाँ बीच में किया था ना, ये क्रशिंग फेलियर ऑफ कॉटर एंड स्लॉट स्पिगॉट के बीच में हो। तो यहां से इस रिलेशन से देखें पाई बाय 4 पुट करते हैं यहाँ पे d1 स्क्वायर माइनस d2, d2 इज 148 का स्क्वायर हो गया माइनस d1 माइनस d2 148 इंटू t मतलब 6 इंटू दिस इज इक्वल टू p बाय सिग्मा टी। यदि सिग्मा टी को इधर ले गए तो ये 80,000 डिवाइडेड बाय सिग्मा टी मतलब 50 है। So it will be pi by 4 d1 square minus pi by 4 into 148 का स्क्वायर माइनस d1 प्लस 148 into 6 प्लस d1 into 6, ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और ये हो जाएगा 16 पंजे 80, तो ये 16,000 पाई बाय 4 d1 स्क्वायर माइनस ये कितना आएगा, ये इसको इधर ले आओ, एक काम करो माइनस 6 d1
और माइनस पाई बाय 4 इंटू 148 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 148 इज इक्वल टू 16,000। एक इसमें देखें क्या क्या वैल्यूज आती हैं। वन 148 का स्क्वायर तो ये वाली जो वैल्यू है ये आ रही है 275,253.782 और 6 इंटू 148 ये आ रही है 888। तो हम इसको लिखेंगे पाई बाय 4 d1 स्क्वायर पाई बाय 4 d1 स्क्वायर माइनस 6 d1 माइनस 275,253.782 plus 888 is equal to 16,000। सोल्व कर लो इस इक्वेशन को। पाई बाय 4 d1 स्क्वायर माइनस 6 d1 माइनस ये इनको 275,253.782 प्लस 888 माइनस 16,000 इक्वल टू 0। ठीक है 275,253.782 इतना आया माइनस 16,000। तो ये हो गया पाई बाय 4 d1 स्क्वायर माइनस 6 d1 माइनस 290,365.782 equal to 0. Now this is a quadratic in D. इस quadratic equation को solve करो और d1 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। सर ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा हाँ ये 275,253 वाली वैल्यू कैसे आई, ये तो आ नहीं रही सर मेरे। यहाँ से चेक करो पाई बाय 4 हाँ पाई बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 148 का होल स्क्वायर है ना, तो जब पाई बाय 4 इंटू 148 का स्क्वायर को सॉल्व करते तो 17,194.64 आता है। ये नहीं आता है। नहीं सर वो वैल्यू तो नहीं आ रही। देखो एक बार चेक कर लेते एक बार और 148 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइड बाय 4। अच्छा ये गड़बड़ वैल्यू आ रही। यस सर वो सीधा 171। तो करेक्ट कर लेते हैं। और सर ये 16,000 वाली वैल्यू भी इसमें 1600 ही आएगा सर। 16,000 आएगा ना। नहीं सर वो 80,000 है डिवाइड बाय 50 है ना, तो 1010 कैंसिल हो जाता है और 5 से जब 1600 आएगा। यस 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 1600 आएगा ये भी करेक्ट। 1600 ही आएगा। 1600 ही आएगा करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पर ये आएगा 17,194.64
203.36, यहाँ पे 17203.36 वैल्यूज चेंज हो जाएंगे, यस चेंज हो जाएगा इक्वेशन। तो ये हमारा आएगा π/4 d1 स्क्वायर माइनस 6 d1, और अब यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस में है ना, ठीक है, 16315 माइनस 16315 16315 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी। इसको सॉल्व करते हैं और d1 निकालते हैं। d1 कितना आएगा? सर वो 17915.36 है। 1 नहीं, ये जो आप 16315 के प्लेस पे 17915.36, ये जब हमने इसमें ऐड कर दिया, 1600 भी ऐड कर दिया, तो ये वैल्यू आएगी। अच्छा, तो वो तो माइनस होगा ना? हाँ, माइनस करने के बाद दोनों माइनस में आ जाएगा ना, तो सर वो ऐड हो गया वैल्यू, तो 17915.36। चेंज हो जाएगी 1791.36। 915.36। ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया जितना करेक्शन। अब d1 निकाल लो। यस सर। कुछ वैल्यू निकली?
कभी नहीं लिखी। एनीवन एल्स? किसी ने सॉल्व किया क्वाड्रेटिक? सभी को प्रॉब्लम करना है भाई। सर एक आ रहा है 154.93 150 और एक है -147.28 माइनस 154.93 माइनस तो नहीं करेंगे, हमारी वैल्यू आएगी 154.93। 93 वो दूसरी वैल्यू माइनस में आ गई। हाँ, निगेटिव वैल्यू को डिस्कार्ड करेंगे। So D1 say it is 155 mm. That is D1 means the outer diameter of socket. ये स्पिगॉट है हमारा, सॉकेट का आउटर डायमीटर। दिस इज ये डायमीटर, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्वार्टर की थिकनेस हमें मिल गई है, सो वी कैन फाइंड आउट द मीन विड्थ ऑफ क्वार्टर। क्वार्टर की मीन विड्थ हम निकाल सकते हैं, दैट इज द फेलियर मोड इज shear failure of quarter. So considering shear failure of quarter, shear failure of quarter twice bt into tau is equal to p, ये relation। so twice into b into t, t 6 mm था, into tau is 35 megapascal।
So that is equal to 80,000. So B is equal to 80,000 divided by 2635 mm. So this is the area of cross section. This dimension is B, mean width, and this is T. So B की value आई 80,000 divided by 190.47. कितनी आ रही 190.47 ना 7 say 191 mm. Yes, sir. This is T. ठीक है so mean width of quarter निकल गई. Now next relation is this. Consider shear failure of spigot rod end. ये तो यहाँ से shear failure of spigot rod end. Relation is twice A d2 tau is equal to P. तो d2 known है, A यहां से मिल जाएगा. A is this dimension. So to A d2 is 148 into tau 35 is equal to 80,000. So A is equal to 80,000 divided by twice 148 35 mm. तो ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इसकी बात कर रहा हूँ. This dimension is A and this dimension is D2. तो A is equal to 7.72. 7.72 mm. यानी नियरली 8 mm की हो गई. ठीक है. Next, crushing failure of socket or the cotter, so that we can find out the collar diameter of socket. Crushing failure of socket or cotter. Relation D4 minus D2 into T into sigma C is equal to P. Equation से collar diameter of socket minus 1 नोट कर लो भाई. Sigma 90, that is equal to 80,000.
प्लीज म्यूट कर दीजिए। So D4 minus 148 is equal to 80,000 upon 6 into 90, or D4 is equal to 80,000 upon 6 into 90 minus 148. ये mm में लेगा। So D4, that is the diameter of collar of the pet. 80,000 divided. सर माइनस वाला साइन उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अच्छा प्लस होता है, ठीक है, प्लस 148। चेक करिए कितना आ रहा है आपका। D4 is equal to 296. 296 ना, ये वही आ रहा था। प्लस 148, 296.148 mm. ये कॉलर का डायमीटर में मिल गया, कॉलर का। सिमिलरली जो स्पीगॉट का कॉलर है उसका भी हम डायमीटर निकाल लेते हैं। क्रश ये इस क्राइटेरिया से क्रशिंग फेलियर of collar of got and socket. So pi relation क्या है? Pi by 4 d3 square minus d2 square into sigma c is equal to 2. So it will be pi by 4 d3 square minus d2 कितना आया था 148 का स्क्वायर into this is equal to p 80,000 upon sigma c and 90 कर दो इसको। तो ये जो होगा d3 square minus 148 का स्क्वायर is equal to 80,000 upon 90 1600 आ रहा था, into 4 upon pi, ये इधर से इधर चला गया तो d3 सर आपका square स्क्रीन में दिख रहा है। यस सर। now it is visible, अब दिख रहा है? नो सर, अभी भी नहीं दिख रहा है, क्या बात कर रहे हैं? बाकी किसी को दिख रहा है दिख क्या? रहा है दिख रहा है। हाँ दिख रहा है बाहर अंदर आ जाओ, एक बार रिज्वाइन कर लीजिए। आउट होके फिर ज्वाइन कर लो। यस सर। 1600 into 4 फिर आप अपना म्यूट कर लो थोड़ा। divided by pi 4 है ना, 1600 into 4 plus 148, तो d3 square is equal to आएगा 23942.2
और D3 आएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 154.72. 154.73 mm. So it is 155 mm. ये कॉलर का डायमीटर हो गया जो स्पीगॉट में है। अगला डायमेंशन और निकाल लेते हैं। ये जो कॉलर है इसकी थिकनेस कितनी है? इस कॉलर की, स्पीगॉट का जो कॉलर है उसका हमने डायमीटर तो निकाल लिया, अब उसकी थिकनेस कितनी है? So that is given by this relation, that is shear failure of collar of spigot. Relation है pi d2 t1 tau is equal to p. तो pi d2 148, t1 निकालना है, टाउ 35 है और p 80,000 न्यूटन का है। तो t1 is equal to 80,000 upon pi 148 और 35, ये mm में आएगा। इसको कैलकुलेट करें तो t1 की वैल्यू हमें मिलेगी 4.99। 99 92 या 99 जो भी है, तो t1 जो है वो इट विल बी 5 mm, ये हो जाएगी। ठीक है, 4.99 है। तो देन और कुछ बचा है क्या? ये बच गया, जैसे देखिए बेंडिंग फेलियर ऑफ क्वार्टर में हाँ वो भी बचा है, प्लस जो सॉकेट का कॉलर था, उस सॉकेट का कॉलर का हमने डायमीटर तो निकाल लिया, तो ये निकालना रह गया इसका डायमेंशन, ये थिकनेस ऑफ दिस कॉलर। तो फेलियर मोड failure of socket end, रिलेशन में हमारा D4 माइनस D2 इंटू C इंटू टाउ इज इक्वल टू P। ठीक है, इसमें से C जो है ये थिकनेस है कॉलर की, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ये रहा, ये इनर डायामीटर है D2, ये आउटर डायामीटर है D4 कॉलर, और ये जो है दिस डायामीटर, दिस डायमेंशन इज C। तो D4 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? D4 297, 296। हाँ पॉइंट था ना, तो 297 माइनस D2 148 इंटू C इंटू टाउ 35 80,000। तो C की वैल्यू जो होगी 80,000
135 into 297 minus 148 ये mm. So this is equal to 297 minus 148 149 again. Just multiplied by 35 here. तो 5.15 और इसका इनवर्स लिया मतलब ये हो जाएगा 80,000 अपॉन 5.215 सी। तो इसका इनवर्स हम लेंगे ये मल्टीप्लाई करेंगे 80,000 इट इज कमिंग आउट 15.34 चेक करना भैया कितने आया 15.34 है। ठीक है सो वी कैन टेक इट 16 mm हम 16 mm ले सकते हैं उसको ठीक है और कुछ बचा टेंशन फेलियर हो गया हमारा फेलियर हो गया बेंडिंग फेलियर अब बचा है तो इस जॉइंट को हमें बेंडिंग में चेक करना है ना सो चेकिंग इन बेंडिंग बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी that is equal to 3p into bracket d2 by 4 plus d4 minus d2 upon 6 divided by tb square ये रिलेशन है तो सिग्मा b is equal to 3 into 80,000 in the bracket में d2 and 148 by 4 plus d4 297 minus d2 148 upon 6 इसको डिवाइड करोगे t मतलब 6 है और मेन विड्थ ऑफ क्वार्टर 191 इसको सॉल्व कर तुम 3 into 80,000 148 by 4 plus ये आएगा कितना आ रहा था डिफरेंस 97 minus 148 149 by 6 divided by 6 into 191 जैसे न्यूटन पर mm स्क्वायर में by 6 bracket 24.83 148 by 4 37 6 into 191 1146 Newton per mm square. This is equal to 37 plus 24.83. So 24,000 into 61.83 upon 1146. तो इसको सॉल्व कर लो 2 4 1 2 3 4
डिवाइडेड बाय 1146। एक बार चेक करना है कैलकुलेशन, कुछ गलत तो नहीं किया हमने। सही है सर। 12948.69 आ रही है। यस 12948.69 सही है सर। सही है, चलो। हाँ सर। तो फिर अब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? बेंडिंग में क्वार्टर जो है वो बेंडिंग फेलियर हो जाएगा क्वार्टर का, क्योंकि ये सिग्मा भी इतनी है, जबकि जो हमारी टेंसाइल स्ट्रेस है परमिसिबल सिग्मा टी वो है 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, और ये है हमारी इतनी, तो मतलब क्वार्टर इज फेल हियर, क्वार्टर यहाँ पर फेल हो गया क्वार्टर का, तो रीडिजाइन करना होगा। ठीक है ना, रीडिजाइन करेंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बेंडिंग, क्योंकि हमने जो डायमेंशन सब निकाले हैं दीज आर द मिनिमम डायमेंशन, इससे कम नहीं होना। तो यहाँ पे देखिए कि हम इस बेंडिंग स्ट्रेस को कम कैसे करें। सो मटेरियल सिलेक्शन दूसरा कर सकते हैं सर क्वार्टर का। ये मटेरियल चेंज कर सकते हैं, बट हमने क्वार्टर का जो मटेरियल लिया है जो माइल्ड स्टील का या स्टील का जो है उसी मटेरियल का मैक्सिमम यूज होता है। कोई बात नहीं, दैट इज वन अनदर थिंग कि मटेरियल चेंज कर दें। थिकनेस इंक्रीज करना पड़ेगा। दूसरा कि यहाँ पर ये देखें तो न्यूमरेटर D2 D4 है ना, ये न्यूमरेटर में, इनको हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि सिग्मा भी कम कैसे होगा, या तो हम न्यूमरेटर पार्ट कम करें या डिनोमिनेटर को बढ़ाएं। न्यूमरेटर को हम कम नहीं कर सकते, तो यहां पर क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को हम बढ़ा सकते हैं। इट मींस TB स्क्वायर का ये जो प्रोडक्ट है इसको यदि हम इंक्रीज कर दें तो ये रिड्यूस हो जाएगी। तो हमारे पास Yes. ऑप्शन है यहाँ पर कि आइदर वी इंक्रीज T or we increase B. So from this relation, the more it is convenient to increase B. ठीक है, देखो यहाँ T B स्क्वायर है, T को यदि हम इंक्रीज करेंगे तो वो लीनियरली इंक्रीज होगा, B को यदि हम इंक्रीज करेंगे तो उसका स्क्वायर यहाँ पे इंक्रीज होगा। ठीक है ना, क्योंकि B स्क्वायर में है। तो हमारे लिए कन्वीनियंट क्या है कि हम इस B को बढ़ा दें। नाउ हियर इट इज 12948.69, बहुत लार्ज है। यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक लग रहा है। यहाँ पे आपने TB स्क्वायर लिया और कैलकुलेशन में 6 × 191 ही किया है सिर्फ, क्योंकि 191 का स्क्वायर होगा। अच्छा नहीं किया। अच्छा, यहाँ वो पे ऑलरेडी रिड्यूस हो जाता है वैल्यू। एक मिस्टेक हमने जो प्रॉब्लम में हमारी है कि यहाँ पर हमने B स्क्वायर नहीं लिया। चलो यहाँ यस, B स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ B स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ B इसी स्क्वायर वैल्यू को 191 से हम डिवाइड कर देते हैं। को हम डिवाइड कर देते हैं 191 से, और तब देखें क्या आती है। 129.69 डिवाइड बाय 191, तो 67.79 आई, फिर भी ज्यादा है 50 से। ठीक है,
यस सर, मतलब ऑलमोस्ट हमें थोड़ा बहुत लेस करना पड़ेगा। हाँ, तो अब इसमें से हम क्या करते हैं कि एक काम करते हैं, टी को थोड़ा सा बढ़ा के देख लेते हैं यस सर, ना। टी अभी 6 mm है, लेट टी इज 8 mm। यदि इससे काम हो जाता है तो इट विल बी गुड। और अब निकाल लेते हैं हम, तो कितना हो जाएगा। टी हमारे यहाँ कितना 6 था, तो इट इज मल्टीप्लाइड बाय 6 एंड डिवाइड बाय 8। ये हमारी इसको करने से सिग्मा भी 50.84 आएगी। 50.84, यस सर। ठीक है, यस सर, तो अभी भी मतलब लेस देन नियरली इक्वल है। 9 कर सकते हैं, अगर 8.5 और 9 कर दे तो आ जाएगा। तो विल मेक इट 8.5, है ना। 8.5 करने से हमें आ गया, बस 8.5 से हमारा काम हो जाएगा। 8.5 जैसे ही करेंगे सिग्मा भी 47.85 हो जाएगा। मींस सिग्मा बी इज नाउ लेस देन सिग्मा टी परमिसिबल। सो नाउ द डिजाइन इज सेफ। बट इन दैट केस सर हमको स्लॉट का डायमेंशन भी चेंज करना पड़ जाएगा ना। हाँ स्लॉट का डायमेंशन भी चेंज करना पड़ जाएगा ना, फिर जिसमें ये क्वार्टर जाएगा। हाँ, ये टी इतना करना पड़ेगा ना उस केस में, टी 8.5 करना पड़ेगा। पूरी कैलकुलेशन चेंज करेंगे, हाँ, जहाँ जहाँ पे टी की वैल्यू आ रही है उधर चेंज करना पड़ेगा। टी 6 था तो यहाँ 8.5 हो जाएगा। यहाँ पर आ रही, तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि टी 8 देखो यहाँ पर d2 इंटू टी इज इक्वल टू पी बाय सिग्मा टी सिग्मा सी है, ठीक है ना। टी कितना है यहाँ पे मिनिमम 6 mm, इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा चल सकता है। सो 8.5 इज ग्रेटर देन 6। तो यहां से हम उसको चेक भी कर सकते हैं कि यहां से हम सिग्मा सी वर्किंग निकाल लें। सिग्मा सी वर्किंग निकाल लें मतलब सिग्मा सी या फिर वर्किंग सर इसमें ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जैसे मिनिमम मिनिमम शुड बी 6 mm, तो उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी 50% ऐड कर दे तो अराउंड 9 दे रहे वहीं पर। नहीं, वो ठीक है ना। ये यहाँ पे जो कैलकुलेशन फॉर रिलेशन हमने निकाले ना डायमेंशन, दीज आर मिनिमम डायमेंशंस, इससे कम नहीं चलेगा, ज्यादा चल जाएगा। ठीक है, यस सर। तो अल्टरनेट वी कैन डू। यहाँ से ये काम भी, हमको इसको चेक भी लगाना है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये सिग्मा सी वर्किंग हो जाएगी, पी है लोड है, D2 है हमारे पास और T है हमारे पास। D2 148 है और T जो है वो 8.5 है और P इतना है। तो यहाँ से सिग्मा सी निकाल के चेक कर लो कितना आएगा। भाई ये जो सिग्मा सी है मटेरियल की सिग्मा सी से कम होना चाहिए। यदि हमारे ऐसा करने से ऐसा हो रहा है तो जैसे 148 मल्टीप्लाइड बाय 8.5 किया, इसका इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय 80,000 किया, ठीक है। तो ये हमारी आ रही वैल्यू 63.59 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये वर्किंग वाली। तो दैट इज लेस देन 90, सो द वैल्यू इज सेफ, टी की वैल्यू सेफ, ठीक है। यस ये हमारा ये हो जाएगा, बाकी डायमेंशंस वही रहेंगे। और ये सर डिजाइन किया, ये हमारी वर्स्ट कंडीशन है। हाँ, ये लिमिटिंग है हमारे डायमेंशंस, इससे ज्यादा वाले डायमेंशंस हम ले सकते हैं, कम वाले नहीं ले सकते। यस, ये हमारी मिनिमम वैल्यू, इससे नीचे नहीं आएंगे। ये कम नहीं करना, कोई भी वैल्यू कम नहीं हो सकती, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डिजाइन this spigot and socket type of
कॉटर जॉइंट। इसमें कोई जो हमने प्रॉब्लम किया, इज देयर एनी डिफिकल्टी, समझ में नहीं आया हो? क्लियर सब क्लियर है ना? क्लियर। सर ये रिलेशन याद करना पड़ेगा। रिलेशंस जो है, दिस रिलेशंस तो कुछ तो जनरल रिलेशन है जो हमें याद है, और जो डेटा बुक है, डेटा बुक में दिस रिलेशंस आर अवेलेबल, सो हम डेटा बुक यूज कर सकते हैं। ठीक है, डेटा बुक अलाउड है, डेटा बुक हम यूज कर सकते हैं, मतलब हमें को इतना बहुत ज्यादा घोटने की जरूरत नहीं, जैसे मैं तो खैर जो पढ़ा है वो रख लिया है, बट दिस इज रिलेशंस आर अलाउड, रिलेशंस अलाउड। डेटा बुक में सारी रिलेशंस मिल जाएंगे आपको, जो भी रिलेशंस हमने यूज किए ना, सारी रिलेशंस अवेलेबल है। तो वो एग्जाम में सर डेटा बुक अलाउड। हाँ, डेटा बुक अलाउड है। ठीक है, और कुछ इसके अलावा कुछ डाउट? सर अगर हमको और कुछ एग्जांपल्स करने हो तो हम कहाँ से प्रिपेयर करें सर इसको? एग्जांपल्स में आपको और दे दूंगा, ये तो अभी हमने स्लीव एंड क्वार्टर टाइप किया, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा स्लीव एंड क्वार्टर। अच्छा। ठीक है, स्लीव एंड क्वार्टर में क्या था? सिंपलेस्ट टाइप ऑफ जॉइंट, क्वार्टर जॉइंट सिंपलेस्ट टाइप की, दो रॉड्स जिनको हम ज्वाइन करते हैं, एक स्लीव, उसमें जो है वो स्लीव को स्लीव ऊपर से चढ़ा देते हैं, जिसमें दो क्वार्टर यूज होते हैं। लेट मी शो यू, ये वाला, ये बुक से देखें। सो दिस इज द जॉइंट, ये ठीक है, दिस इज वन रॉड, दिस इज अनदर, और ये स्लीव ऊपर से, ये स्लीव। तो इसका तो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे कॉलर कहीं भी नहीं है, तो कॉलर वाली सारी रिलेशंस हमारे जो स्पीगॉट और सॉकेट जॉइंट में थी वो हट जाएंगी। ठीक है, बाकी रिलेशंस वैलिड रहेंगे। तो इसको आप ट्राई करना, और कुछ प्रॉब्लम्स और मैं दे दूंगा आपको करने को, तो आप वो कर लीजिएगा। ठीक है, यस सर। प्रॉब्लम आपको व्हाट्सएप करूंगा या मेल करूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा आपको प्रॉब्लम्स, तो आप उसको ट्राई करना, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछना मुझसे। ओके। ठीक है, अब अटेंडेंस हमने दे दी, चेक बॉक्स में सबने लिख दिए थे अपने रोल नंबर और नाम। अटेंडेंस चली गई मेरे पास वो आपका सर डिस्कनेक्ट हुआ होगा उस समय से। से। तो एक काम करिए, फटाफट रोल नंबर और नाम लिख दीजिए, ताकि अटेंडेंस हो जाए हमारी, और उसके बाद लीव कर दीजिएगा। Sir, now we can leave. हाँ हाँ, आप अटेंडेंस दे दीजिए और लीव कर लीजिए। Okay, sir. Thank you, sir. Good night. गुड नाइट। थैंक यू सर। राइट सर।